Firstly, I would like to welcome our speaker, who had Dr. Karmarkar sir just made a call and he accepted the request to do this webinar. Dr. Abhay Nene, welcome you, sir, for this webinar. He did his MBBS from TN Medical College and did his post graduation in orthopedic surgery from University of Bombay. He did sub-specialty training in spine surgery. He's attached to Leelavati Hospital and various other hospitals, leading hospitals in Mumbai. He's a keen academician and was awarded the Educator of the Year uh, title by the O Spine in 2018. He is currently Asia Pacific chairman of the AO Spine, one of the world's leading academic organizations. He is the spine consultant for the Olympic Gold Quest and Go Sports Foundation. Apart from this, his professional background or professional introduction, he is a cyclist. He does trekkings. He is vocalist and guitarist. So that's all I can introduce about him. And I request Dr. Santosh Karmarkar sir to say a few words and welcome our audience. Hello. Hello. Hi, Abhay. Hi. Good evening to all of you. And at the outset, let me wholeheartedly thank Dr. Nene for accepting our request to conduct this webinar. And we are so very lucky to have one of the greatest, one of the big experts in scoliosis to talk to all of us and to interact with us. And I'm sure this is going to be an exciting session. Scoliosis, as we all know, is quite a challenge for especially spina bifida patients, and the management of scoliosis is really very demanding. We have been wanting to do this webinar and interaction for a long time. A lot of our members have been asking us to do interaction with an expert on this subject. And finally, it is happening today. So I'm also looking forward to listening to the expert views of Dr. Nene, and then, of course, participate in the question, answers, and interaction. And I'm happy to see a lot of people who have joined in. So Abhay, thank you again. Thank you, sir. I'm very, very humbled. I just saw the work that you all do. And, you feel I feel so little in this whole game from what you all are doing that, I should just be doing my bit and sitting out. I think you have done a fantastic job. And it's thankless, I think, what you're doing, sir. It is all tiny drops of water make the mighty ocean. So everybody does his little bit, and that's how this whole thing can be created. But over to Sneha back to start the session. Sneha, by the way, is our chief coordinator of the foundation and has been working with us for the past 3.5 years. And we have seen a good amount of growth after she has taken charge as coordinator. And do we have Snehal and Janvi also with us? Yeah, Janvi ma'am is there. Yeah, so let me also introduce Mrs. Janvi Modi. Janvi, would you like to keep your camera on? Where is she? Yeah, I'm here. Yeah, so Janvi is Abhay. She is my co-trustee of the foundation. We started this together in 2006, and since then she has been with us. She is a parent, mother of now not a girl but an adult who has
spina bifida. So nice of you, Janvi, to join in. And is Nehal there? She was going to join from USA, but Nehal she messaged will. me. She's in US, so I think she can't join. There's a timing issue, but she Yeah, did. yeah, yeah. Okay. It's a part of her job also here. Yes. So great. So please start. So, Yes. I welcome you all for this webinar, but I request Dr. Nene sir to share his screen. Yes. I hope you can see this. So And at the outset, yeah, Hindi मध्ये बोलायचं ना? I should speak in Hindi, yes, ना? yes. And please, I request all to switch off their mute mute their mics and switch off their cameras if in case that may disturb. एक्चुअली मेरे लिए सब कुछ ओके है, सब लोग अपना कैमरा ऑन रखो, बात करो, बिकॉज ये बड़ा इनफॉर्मल वेबिनार रहने वाला है. वी हैव टू स्पीक टू ईच अदर इन अ वेरी कैजुअल वे. अपने को कोई इश्यूज नहीं है. लेट इट बी इंटरैक्टिव, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको सिंप्लीफाई करके जितना अब्जॉर्ब कर सके उतना कराएंगे. लेकिन एट द आउटसेट आई मस्ट से कि हमारे जैसे सर्जन्स 1, 2, 5 या 10 लाइव्स को चेंज करते हैं, बट आपके जैसा फाउंडेशन पूरी दुनिया को चेंज करता है. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सर्जन्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक योर्स. एंड आई एम privileged to be a part of a small part of your academic activity, and hopefully in future I can be a part of your picture in a bigger way. स्कोलियोसिस ये बड़ा खुफिया माना जाता है. ऑर्थोपेडिक्स में सबसे डिफिकल्ट लाइन मानी जाती है, बट एक्चुअली जो ऑर्थोपेडिक का ओरिजिनल सिंबल था वो स्कोलियोटिक ट्री का सिंबल था. और अपने पुराणों में स्कोलियोसिस का जिक्र कुब्जा के स्टोरी में किया है. जिनको पता है, कुब्जा ये डिफॉर्म्ड लेडी थी और भगवान कृष्ण ने उनको खींच के सीधे किया था. और ये स्टोरी उस टाइम मिथिकल लगती है, बट एक्चुअली ये स्टोरी में कुछ तो रखा है, बिकॉज उसका वर्णन जो किया है वो एग्जैक्टली स्कोलियोसिस का है. और उसकी जो ट्रीटमेंट कृष्णा ने दी थी वो आजकल ट्रैक्शन के तरीके से देते हैं. सो अपने भी अपने भी पूर्वजों को स्कोलियोसिस के बारे में बिल्कुल अच्छा खबर था. सो स्कोलियोसिस का एक डेफिनेशन है. और जब हम सामने से स्पाइन को देखते हैं तो अगर स्पाइन टेढ़ी दिखती है, जब सामने से देखो, इसको हम लोग हमारी भाषा में कॉर्नल व्यू देखते हैं. जब आप बंदे को सामने से देखते हो, अगर बैक में टेढ़ापन है, एस शेप या सी शेप, तो उसको स्कोलियोसिस कहा जाता है. और ये 10 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको स्कोलियोसिस माना जाता है, क्योंकि 10 डिग्री से कम ये नॉर्मल वेरिएशन होता है. तो इसमें मुद्दे की बात है कि कई लोगों को दिखेगा, कई लोग टेढ़े मेढ़े खड़े रहते हैं, उसका मतलब नहीं उनको स्कोलियोसिस है. और मिनिमम 10 डिग्रीज की जरूरत होती है जिसमें वो दिख जाए. और ये डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन है. अभी सालों तक हम लोग स्कोलियोसिस को सिर्फ एक प्लेन की डिफॉर्मिटी मानते थे, यूनिप्लानर डिफॉर्मिटी, विच मीन सामने से देखो तो टेढ़ा है, बाकी एवरीथिंग इज स्ट्रेट. बट इन रियलिटी स्कोलियोसिस ये 3 प्लानर डिफॉर्मिटी है. यानी आप अगर सोचो तो अपने वर्टिब्रल कॉलम, यानी जो मणके रहते हैं, वो एक के ऊपर एक रचे हुए कैरम कॉइन्स जैसे होते हैं, और वो कैरम कॉइन्स ट्विस्ट हो जाते हैं. तो वो ट्विस्ट हो गए तो उसको रोटेशनल डिफॉर्मिटी कहते हैं. और उसका दिखने में वो फ्लैट टेढ़ापन दिखता है, बट आप अगर ऊपर से देखो तो वो स्पाइन पूरी ट्विस्ट हो जाती है. और ये थ्री प्लानर डिफॉर्मिटी, 3 प्लेन में डिफॉर्मिटी, साइड से भी फ्लैट, सामने से भी कर्व्ड और ऊपर से भी ट्विस्टेड, ये स्कोलियोसिस अभी हम समझते हैं. और इसके हिसाब से अपना स्कोलियोसिस का इलाज पूरी तरह से बदल गया है. यानी 70s तक हम लोग इसको सिर्फ एक फ्लैट मानते थे और उसको सीधे करने का इलाज मानते थे, बट अभी उसको डी रोटेट करने का मुद्दा आ गया है. एंड दैट इज द फंडामेंटल ऑफ स्कोलियोसिस. तो आप अगर स्कोलियोसिस के पेशेंट्स को जिन्होंने देखा है, हम इनको पेशेंट्स नहीं कहेंगे, स्कोलियोसिस वाले लोग कहेंगे, बिकॉज इनको कोई बाकी रोग नहीं होता. तो उनको सामने दिखता है कि उनका पीठ का भाग बाहर आया हुआ दिखता है, यानी उसको हम लोग रिब हम्प कहते हैं. सो एक्चुअली स्पाइन को अटैचमेंट होती है रिब्स यानी बरगड़ी की बोन्स. और वो जब स्पाइन ट्विस्ट होती है, जैसे आपको ये फिगर में दिखेगा, वो रिब बाहर पुश हो जाती है. तो जब हम स्कोलियोसिस के आदमी को या गर्ल को पीछे से देखते हैं, अपने को फर्स्ट दिखता है कि उसकी पीठ का हिस्सा बाहर आया है, बट एक्चुअली वो स्पाइन उसको पुश कर रही है. और अगर आप ये 3 फोटोज में देखो तो आपको कुछ अंदाज आ जाएगा. और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज उसको सिर्फ आप दबा के सीधे करो तो वो काम नहीं है, उसको ट्विस्ट करके सीधा करना पड़ता है. और ये इंपॉर्टेंट चीज है. अभी स्कोलियोसिस किसी भी वजह से हो,
की डेवलपमेंट इसी तरह से होती है। यानी आपको जो पिक्चर ऑन द लेफ्ट दिखे वो एकदम शुरुआत है, यानी एक एज में, और ये एज वेरिएबल है, अलग लोगों को अलग टाइम में स्कोलियोसिस शुरू होता है, बट एट वन एज थोड़ा सा कर्व शुरू होने लगता है। यानी बैक जो सीधी डेवलप होने चाहिए थी, यानी बैक के जो बोन्स है, वर्टेब्रल बॉडीज, मणके, वो एक के ऊपर एक ऐसे 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 करके ओपन अप होते हैं, तो वो किसी के टेढ़े या ट्विस्ट होके डेवलप होने लगते हैं। और जैसे बाढ़ होती है वैसे वो कर्वेचर बढ़ जाता है, और एक टाइम आती है जब वो कर्वेचर की वजह से अपना हेड ऑफ बैलेंस चले जाता है। और जब वो ऑफ बैलेंस होता है तो स्पाइन या अपने बॉडी को बैलेंसिंग का रिफ्लेक्स है, यानी आप ऐसे खड़े रहो तो तुरंत बैक अपने को सीधा करेगी, और उसकी वजह से नीचे और एक कर्व आ जाएगा जिसको हम लोग कॉम्पेंसेटरी कर्व कहते हैं, जो सर को फिर लाइन में लाएगा। तो हर एक स्कोलियोसिस का डेवलपमेंट इसी तरह से होता है कि पहले थोड़ा सा सी, फिर बड़ा सा सी, फिर सर ग्रेविटी लाइन के बाहर जाने लगेगा और फिर बैक उसको सीधे करेगी और वो सी का एस बन जाता है। इसका स्पीड ऑफ डेवलपमेंट काफी स्लो होता है, और इसका बिगिनिंग टू एंड बड़ा वेरिएबल टाइम में होता है। अभी आप देखो तो इसका अगर आप मन में रखो तो आप कोई टर्मिनोलॉजीज अगर सुनो तो स्ट्रक्चरल कर्व यानी ये फिक्स्ड कर्व होता है, यानी इस मामले में ये स्ट्रक्चरल कर्व कहा जाएगा, लेकिन ये कॉम्पेंसेटरी कर्व कहा जाएगा। जो नीचे वाला कर्व है वो कॉम्पेंसेटरी कर्व कहा जाएगा, यानी ये वाला कर्व कॉम्पेंसेटरी मानेंगे, लेकिन ये वाला कर्व स्ट्रक्चरल कर्व मानेंगे। जो फर्स्ट कर्व आता है वो तो स्ट्रक्चरल कर्व, यानी जो पहला कर्व आया और जिसमें अभी ऐसे चेंजेस हो गए कि वो कर्व खींचने और तानने से सीधा नहीं होगा, वो परमानेंटली हार्ड हो गया है, उसको स्ट्रक्चरल कहते हैं। और बड़े कर्व को मेजर कर्व कहते हैं, छोटे कर्व को माइनर कर्व कहते हैं। यानी अगर अपने पेशेंट या अपने बंदे को दो कर्व्स है तो जो बड़ा है उसको मेजर कहेंगे। जो मेजर कर्व है वो डिफॉर्मिटी को ड्राइव करता है, जिसका मतलब है उस हिसाब से डिफॉर्मिटी अपने को दिखेगी। यानी अगर वो ऊपर वाला कर्व है तो वो डिफॉर्मिटी शोल्डर में दिखेगी, अगर वो नीचे वाला कर्व मेजर है तो डिफॉर्मिटी पेल्विस में दिखेगी। तो आई होप ये बात क्लियर है। एंड आई वुड एनकरेज, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए या जो भी लेट ज्वाइन किए हैं और उनको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछिए। यहाँ डिसिप्लिन उतना ही है, अपने को एक दूसरे से चर्चा करनी है, बिकॉज कभी कभी हम लोग जो बताते हैं वो जिसको ओरिजिनल इसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके काफी ऊपर से जाता है। तो हमको रोक के अगर आप डिस्कशन करें ना तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। सो दैट इज एज फार स्ट्रक्चरल कर्व एंड नॉन स्ट्रक्चरल कर्व इज कंसर्न। जब किसी को दो कर्व होते हैं, यानी जैसे शुरुआत में हम कहे कि एस कर्व या सी कर्व, तो जो एस शेप कर्व होता है उसको डबल मेजर कर्व कहते हैं, जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के कर्व्स है और बैक का शेप एस में आ गया कंपेयर टू सी। एंड कॉम्पेंसेटेड कर्व, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्पाइन का हेड हेड अपने ग्रेविटी लाइन से बाहर जा रहा है तो उसको सीधा करने के लिए नीचे की स्पाइन, बिकॉज स्पाइन इज अ मोबाइल स्ट्रक्चर, उसको खींच लेती है और उसको कॉम्पेंसेटरी कर्व कहते हैं। जब ये कॉम्पेंसेटरी कर्व काम नहीं कर सकता तो ये स्पाइन को हम डीकॉम्पेंसेटेड कहते हैं, जिसका मतलब है कि ओरिजिनल कर्व इतना बड़ा है कि नीचे के कर्व ने बहुत कोशिश की तो भी सर सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी से बाहर जा रहे हैं, यानी ऐसी सिचुएशन को डीकॉम्पेंसेशन कहते हैं। और डीकॉम्पेंसेशन ये बड़ा एक तरह से खतरनाक वर्ड है स्कोलियोसिस में, बिकॉज एक बार डीकॉम्पेंसेशन हो गया तो ग्रेविटी लाइन बाहर जाती है और ये कर्व बहुत फास्ट प्रोग्रेस होता है, और ये कॉमन सेंस है। जैसे ऐसे आप खड़े रहो तो धीरे धीरे ऐसे होते जाओगे, बिकॉज ग्रेविटी उसको आपको खींचे जाती है। एंड ये एक रेड फ्लैग माना जाता है, यानी अगर कर्व का मैग्नीट्यूड यानी कर्व का एंगल बहुत बड़ा नहीं है लेकिन कर्व हेड को ऑफ सेंट्रिक ले जा रहा है तो ये अपने लिए रेड फ्लैग है। और स्पेशली छोटे बच्चों में ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और आगे आप सुनोगे जब ब्रेसिंग की बात आती है तो ब्रेसिंग इस स्पेसिफिक सिचुएशन में काम करता है, जिसमें हम वो कर्व को आर्टिफिशियली सेंट्रलाइज करके बाहर से कोई पट्टा डाल देंगे, बिकॉज ये वाले कर्व्स टिपिकली लो मैग्नीट्यूड के और फ्लेक्सिबल कर्व्स होते हैं। सिर्फ वो नीचे का कॉम्पेंसेटरी कर्व उसको नीचे काम नहीं कर रहा तो उसको काम कराने के लिए हम लोग ब्रेसेस डालते हैं। तो ये बात हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। सो फार एनी क्वेश्चंस, कोई चीज जो डिस्कस हुई है जो विच इज गॉन लिटिल बिट ऑफ, then please stop me and ask me, because फिर आपको relevance नहीं रहेगा। So just be absolutely free to unmute and ask. Anybody has questions, please ask. Feel free to ask. Hindi. Yeah,
I was waiting if somebody asks, otherwise I'll ask. Doctor, the last thing what you said just now, the compensatory curve. So Yeah. I could not actually understand, but then you said we will be discussing it again when you talk about the corset or Yeah. No, about the brace we'll talk again, but about the decompensation you must understand now, because uh-huh. So, if so what I would like to ask is if there is a curve which is on the lower back, and then because of that there is a curve on the upper side of the back. Yeah. So the curve which is on the upper side can be corrected if we just brace the lower part. Yes, because that's a compensatory curve. So the first curve to form drives the deformity. When normally it is in the upper part. So more commonly, the thoracic curve, which is the upper curve, is the first curve. And less commonly, I'm going to say in 20% of people, the lower curve is the first curve. Okay. If the upper curve is the first curve, the lower curve tries to bring it back. And if you correct the upper curve, the lower curve wants to straighten up, because the lower curve is a compensatory curve. It's not actually a curve, but the body is trying to curve the spine to bring the head back. Similarly, if the lower curve was the first curve, the upper curve is trying to get the body back. And if you correct the lower curve, the upper curve will become straight. Yeah. Is But that I think there must be a time span in which we should be doing this, correct? Or 100%? So yours is a very, very thought-provoking question. So that's where this comes in, and this is called double major curves. So like you said, शुरुआत में एक कर्व मेजर होता है और दूसरा कर्व उसको सीधे करने की कोशिश करता है. एक समय आ जाता है जब वो कोशिश करने वाला कर्व भी मेजर कर्व हो जाता है, और फिर दोनों कर्व्स आर इक्वली स्ट्रक्चरल, which means that now, and that's called a double major curve, which means that typically if there are two curves and both curves have equal magnitude and they are equally less flexible, that's a double major curve, and there this fundamental won't work कि आप अगर एक को सीधे करो तो दूसरा सीधा हो जाए. So you brought out a very relevant point, Janvi. I hope that's clear. yes, yes, yes. And that time span, okay, what is the time when you can just put a brace and correct everything, or do a half surgery and correct the others? That is the key question in spine surgeons today, because we want to correct the scoliosis operating the least amount of vertebrae. So if we are able to identify which part of the curve will correct itself without actually instrumenting it, then we are better surgeons than others who will instrument the whole spine. And that is the key question among spine surgeons today. So I think you touched upon a very controversial and very critical topic that we discuss in our fields. The ways to identify which curve is stiff and which is not. We do bending x-rays, we do traction x-rays, and try to find out, okay, is this curve flexible or is this curve stiff? Which means that if I leave this curve alone, will it automatically correct itself? Okay. Any other questions? Otherwise, we'll quickly go to the classification. And common sensibly, the first classification is depending on where the curve is. So the commonest curve is in the dorsal spine or the thoracic spine. तो आपको पता है कि अपनी spine में तीन हिस्से होते हैं, cervical spine, dorsal या thoracic spine. वो interchangeable word है. Dorsal spine और thoracic spine ये same है, और lumbar spine. तो cervical spine यानी neck, और इसमें 7 bones होते हैं, और इसका वैशिष्ट्य है कि ये एकदम फ्लेक्सिबल स्पाइन है. इसमें 360 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और उसके अंदर की नस बहुत सेंसिटिव होती है. थोरैसिक स्पाइन ये रिब केज वाली स्पाइन है, यहाँ से यहाँ तक. उसमें 12 बोन्स होते हैं. इसका स्पेसिफिकेशन है कि ये इमोबाइल स्पाइन है, बिकॉज रिब केज उसको बांधे रखता है, तो वहां पे मूवमेंट ना के समान है. और ये स्पाइन में कर्व एक तरह का होता है, ऊपर के स्पाइन में कर्व एक तरह का होता है, और नीचे का स्पाइन इज द लंबर स्पाइन, जिसका खासियत है कि वो वर्क हॉर्स है, बिकॉज पूरे बॉडी का लोड वो लंबर स्पाइन पे 18 आवर्स अ डे आता है, और पूरी मूवमेंट बॉडी की वहां पे होती है. सो ये थोड़ा सा वेर एंड टेयर वाला स्पाइन है, लेकिन यहाँ की नर्व बहुत क्रिटिकल नहीं होती है. सो अगर वो कर्व इस हिस्से में हो तो उसको सर्वाइकल कर्व कहते हैं. अगर इस हिस्से में हो यानी नेक और चेस्ट के बीच में, तो उसको सर्वाइको डोर्सल कर्व कहते हैं. अगर बीच वाले स्पाइन में हो तो उसको डोर्सल स्कोलियोसिस कहते हैं. और उसी तरह से डोर्सो लंबर, लंबर और लंबो सेक्रल. सेक्रल यानी टेल बोन, जहाँ जो बेस है स्पाइन का. तो कभी कभी ये स्कोलियोसिस शुरुआत ही टेढ़ा करता है, और वो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है. हमारे में मानते हैं कि पेल्विस यानी जो पेल्विस की हड्डी है वो स्पाइन की आखिरी हड्डी मानते हैं.
तो अगर वो पेल्विस भी टेढ़ा हो तो वो पेल्विस को भी सर्जरी में करेक्ट करना पड़ता है, बट ये रेयर सिचुएशन होती है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ये है, इसको इटियोलॉजिकल यानी कॉजेटिव क्लासिफिकेशन, यानी किस वजह से स्कोलियोसिस हुआ, इसके हिसाब से हम लोग स्कोलियोसिस को नामांकन करते हैं। तो उसका सबसे कॉमन वैरायटी है इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। सो इडियोपैथिक का मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है वी डोंट नो, इसका क्या कारण है हमको पता नहीं है। और ये नॉन मेडिकोज को बड़ा फनी लगता है कि डॉक्टर्स इतने सालों से रिसर्च कर रहे हैं और इनको इडियोपैथिक जैसी चीज अभी भी है। बट ये अनफॉर्चुनेटली ट्रू है कि स्कोलियोसिस जो कॉमनेस्ट है, 80% से ज्यादा स्कोलियोसिस दुनिया में इडियोपैथिक होते हैं, जिसका मतलब उसका कोई वजह नहीं है। डेफिनेटली वो जीन से रिलेटेड नहीं है, माँ बाप से आया नहीं है, खाने पीने की वजह से नहीं हुआ है, डिजीज के वजह से नहीं हुआ है, हेवी बैग पकड़ने से नहीं हुआ है, खराब पोस्चर रखने की वजह से नहीं हुआ है। इसके कोई बहुत रिसर्च करके भी इसका कारण मिला नहीं है, लेकिन उसका पैटर्न अपने को बराबर पता है। यानी ये स्कोलियोसिस डेवलपमेंट में होता है, यानी जन्म से नहीं होता, लेकिन जैसे ग्रोथ होती है, और आपको पता है कि व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज उसमें 2 ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं। यानी 0 to 5 years उसकी ग्रोथ काफी स्लोली होती है, 5 years के आजू बाजू में एकदम से उसकी ग्रोथ होती है, फिर 5 to 8 और 9 years स्लो होती है, और फिर 9 to 14 यानी 10 years के आजू बाजू में एकदम से और एक ग्रोथ, जिसको 2 ग्रोथ स्पर्ट्स कहते हैं। यानी 5 और 10 की अराउंड एज में 2 बार अपनी लाइफ में हम लोग फास्ट ग्रो करते हैं, उस टाइम ये स्कोलियोसिस एकदम से प्रकट हो जाता है, ऐसे समझो। सो इसको ये इडियोपैथिक स्कोलियोसिस को का वैशिष्ट्य ये है, नंबर 1 कि ये ग्रोथ से रिलेटेड है, और जैसे ग्रोथ ज्यादा हो वो या ग्रोथ फास्ट हो, ये ग्रो हो जाता है। ये जन्म से नहीं होता, और इसके पैटर्न्स बड़े टिपिकल है, जैसे अलग अलग टाइप के एसेस या सीज, ये 5 पैटर्न्स इसके डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो आप अगर इसमें गौर करके देखो तो फर्स्ट पैटर्न है जिसमें एस शेप कर्व है, लेकिन एस का नीचे का हिस्सा ज्यादा प्रोमिनेंट है। सेकंड कर्व है जिसमें ऊपर का हिस्सा ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये दोनों डबल मेजर कर्व्स में गिने जाते हैं। तीसरा है और चौथा है जो सी शेप कर्व है। एक है जो जिसका सी लंबर स्पाइन तक खत्म हो जाता है, लेकिन एक है जिसका सी लंबर स्पाइन के अंदर चले जाता है। और आखिरी है टाइप 5 कर्व जिसमें एस शेप है, लेकिन ये एस ऊपर है, नीचे का हिस्सा स्ट्रेट है, लेकिन ऊपर के स्पाइन में ही एस खत्म हो जाता है, यानी ये उल्टा एस माने। तो ये पैटर्न्स ये स्टडी किए, इसके अलग अलग परसेंटेजेस मिले, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग अर्ली ऑनसेट एंड लेट ऑनसेट स्कोलियोसिस कहते हैं। और ये क्यों क्रिटिकल है, जैसे अगर किसी को स्कोलियोसिस 10 साल के पहले हो गया तो तौबा है, और अगर 10 साल के बाद में हो गया तो मैनेजेबल है। ऐसे क्यों मानते हैं? बिकॉज लंग की ग्रोथ, यानी लंग ये एक ही ऑर्गन है जो पूरी तरह से स्पाइन पे डिपेंडेंट है ग्रोथ के समय। तो अगर स्पाइन टेढ़ी हो तो रिब केज भी टेढ़ा होता है, और लंग को ग्रो होने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और अगर ये हो 10 साल के, आप ये चार्ट में देखो तो आपको दिखेगा कि लंग की डेवलपमेंट 10 इयर्स को मैक्सिमाइज होती है। तो अगर आपकी स्पाइन 10 इयर्स के पहले से ही टेढ़ी है तो उसका प्रभाव लंग के ग्रोथ में आएगा, और इसका प्रभाव लॉन्गेविटी में आएगा। यानी दिस इज द ओनली टाइप ऑफ स्कोलियोसिस जिसमें अपनी लाइफ स्पैन पे अफेक्शन आता है। नहीं तो मोस्टली स्कोलियोसिस और लाइफ स्पैन का कोई कोरिलेशन नहीं होता। बट अगर लंग की डेवलपमेंट खराब हुई हो बिकॉज स्कोलियोसिस जल्दी एज में आया, जिसको हम अर्ली ऑनसेट स्कोलियोसिस कहते हैं, तो ये पूरा बाजी पलट देता है। ये फोटो में आपको दिखेगा कि लंग के जो शेडोज है, ये जो ब्लैक लंग का बच्चे में हुआ है, और उसको सर्जरी करो तो कितना खुल जाता है। सो अर्ली ऑनसेट स्कोलियोसिस का चैलेंज ये है कि आपको लंग डेवलपमेंट को क्लियर करना है। नेक्स्ट स्कोलियोसिस यानी एक हुआ इडियोपैथिक जिसका कारण पता नहीं है, दूसरा है कॉन्जेनाइटल जो आपके स्पाइना बाइफिडा के हिसाब से ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मोस्ट स्पाइना बाइफिडा के स्कोलियोसिस कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस माने जाते हैं। और उसमें एक्चुअली बर्थ डिफेक्ट होता है। बर्थ डिफेक्ट का मतलब पैदाइश से जो वर्टिब्रल बोन्स होते हैं, यानी रीढ़ के हड्डी के हड्डियां, वो आइदर सेपरेट नहीं हुए, यानी वो जॉइंट रह गए आधे या पूरे, या वो फॉर्म टेढ़े हो गए, यानी ब्लॉक के जगह ट्रायंगल जैसे फॉर्म हो गए। तो ये हो गया डिफेक्ट ऑफ फॉर्मेशन, यानी ये जो स्क्वायर होना चाहिए था वो ट्रायंगल के शेप में आ गया। और ये हो गया डिफेक्ट ऑफ सेपरेशन, यानी हड्डियां छुट्टी नहीं हुई। और दोनों में आप अनुमान लगा सकते हैं जैसे चाइल्ड ग्रो होगा वो टेढ़ा टेढ़ा होते जाता है। तो
बेसिकली कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस में बोन डिफेक्ट दिखता है जो इडियोपैथिक में दिखता नहीं है। और एक चीज कहने की है कि ये हेरिडिटरी नहीं होता, यानी आपके पेरेंट्स ने आपको ये दिया नहीं है। ये एक तरह से आप देखो तो इसका भी कारण पता नहीं है, कोई कोई कारण है जैसे आपको बताया गया फोलिक एसिड डेफिशिएंसी वगैरह, बट स्पेसिफिकली कंजेनाइटल स्कोलियोसिस बाय इटसेल्फ का कोई कारण पता नहीं है, बट हेरिडिटरी नहीं है इतना अपने को पता है। तो इसके अगर आप टाइप्स देखो तो ये लेगो गेम जैसे है कि अगर एक ट्रायंगल है या दो ट्रायंगल है या ट्रायंगल बोन है लेकिन वो एक जगह जॉइंट है, एक जगह ग्रो हो रहा है, तो इसमें कहो यानी एक बोन हाफ बोन है या ट्रायंगल बोन है लेकिन उसके दोनों तरफ डिस्क है, तो ये बहुत रैपिडली खराब होगा। लेकिन अगर ये, क्योंकि ये दोनों साइड से ग्रो होते जाएगा, तो जैसे चाइल्ड बढ़ेगा ये ट्रायंगल अपना कैरेक्टर बढ़ाते जाएगा और उसकी वजह से बेंड और बढ़ते जाएगी। बट ये जो है जिसमें ट्रायंगल बोन है लेकिन दोनों साइड के वो चिपका हुआ है, ये बहुत फास्ट ग्रो नहीं करता। सिमिलरली जो सेगमेंटेशन यानी सेपरेशन के डिफेक्ट्स है, अगर आधे हिस्से में जॉइंट है आधे में खुला है तो ये बड़ा फास्ट ग्रो होता है, बिकॉज यहाँ पे वो पकड़ा रहता है और यहाँ पे ग्रो होता है, तो इट्स अ डबल वैमी। दोनों तरीके से ये बढ़ते जाता है। सो फार सो गुड। तो ये एक एक्सरे है छोटे बच्चे का जो बाय बर्थ उसको ये ट्रायंगल बोन दिख रहा है और उसमें कर्व आ गया, और ये टिपिकल होता है। और अपने में अर्ली डायग्नोसिस अगर नहीं हुआ ना तो ये एकदम खतरनाक कर्व हो जाता है और तब वो पेशेंट को डायग्नोसिस होता है। और इसके लिए ना ही डॉक्टर्स को बट नर्सेस को, पेरेंट्स को, सबको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, यानी इसकी जल्दी ट्रीटमेंट हो सके। एंड एक्चुअली हम लोग इसकी हमारा जो अभी टीम का रिसर्च चल रहा है वो प्रीनेटल डायग्नोसिस पे है, यानी जैसे स्पाइना बाइफिडा का डायग्नोसिस जन्म के पहले हो सकता है, वैसे स्कोलियोसिस या कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस का भी डायग्नोसिस पहले हो सकता है, और अगर वो हुआ तो काफी सारा हम लोग बदल सकते हैं। तो आप देखो तो इसका कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस 1 in 1000 यानी इतना अनकॉमन भी नहीं है। 1 in 1000 यानी आप सोचो इंडिया की आबादी तो आप समझ जाएंगे। गर्ल्स और बॉयज में गर्ल्स में ज्यादा कॉमन होता है और ये एक सिर्फ स्टेटिस्टिक है, इसका कारण कोई नहीं है। और जैसे मैं बताया अपर स्पाइन में ज्यादा कॉमन है लोअर स्पाइन के कंपैरिजन में। इसका इन यूटेराइन अगर डायग्नोसिस करो यानी अगर जो सोनोग्राफी होती है तो अच्छे सेंटर्स, एक्सपीरियंस सेंटर्स में 12 वीक्स के पहले वो पिकअप हो सकता है। और अगर वो पिकअप हो गया तो अपने को टर्मिनेशन, अगर वो खतरनाक वाला है तो इवन टर्मिनेशन की बात कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एवरेज पिकअप होता है 20 वीक्स के बाद, जहाँ पे टर्मिनेशन का डिफिकल्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट हम लोग शुरुआत से पेरेंट्स को काउंसिल कर सकते हैं कि अभी आप क्या एक्सपेक्ट करो आफ्टर द बर्थ, और पेरेंट्स प्रिपेयर्ड रह जाते हैं उसके लिए। यानी एक बार पेरेंट्स प्रिपेयर्ड हो तो अपने को उसको जल्दी से जल्दी इलाज कर सकते हैं। और प्रीनेटल डायग्नोसिस पे हम लोग काफी अभी वी आर ट्राइंग टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस। वी आर पब्लिशिंग पेपर्स। वन ऑफ माय फेलोज, हिज फादर इज अ प्रीनेटल सर्जन, so he does intrauterine surgeries, so we are very close to trying to do surgeries in utero to try and at least fix a meningomyelocele, and maybe inshallah that may happen soon। क्योंकि अगर वो बहुत खतरनाक तरह का है ना तो बाय बर्थ स्पाइन बहुत क्रूकेड दिखती है। और आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है, डॉक्टर करमरकर इसके एक्सपर्ट है, लेकिन इसके लिए इलाज में बहुत डिफिकल्टी होती है, बिकॉज ऐसे बच्चों में ना ही स्पाइन टेढ़ी है बट इवन नर्व्स डेवलप खराब होते हैं और उसके वजह से उनका नीचे का हिस्सा मूव नहीं होता। और इसमें अपने को काफी फिर अलग तरीके का इलाज करना पड़ता है कंपेयर टू द इडियोपैथिक स्कोलियोसिस जो 85% है। यानी आप अगर सोच सकते हो ये दो में जमीन आसमान का फर्क है। और सर्जन का एंड ट्रीटिंग डॉक्टर का एटीट्यूड भी अलग होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन सेटिंग अलग होना चाहिए, और अपने को अलग तरीके से इसको पेश आना चाहिए। जब कंजेनाइटल स्कोलियोसिस है यानी बोन में डिफेक्ट है, बोन के शेप में डिफेक्ट है, तो 60% चांस है कि नर्व में भी डिफेक्ट हो, 20% चांस है कि किडनी में डिफेक्ट हो, और अगेन 20% चांस है कि हार्ट में डिफेक्ट हो। तो जब हम किसी बच्चे को कंजेनाइटल स्कोलियोसिस डायग्नोज करते हैं, उसके हेलो बोलने के भी पहले हम उसका एमआरआई, सोनोग्राफी और 2DA को कराते हैं, बिकॉज समटाइम्स वो प्राधान्य रखता है, वो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। अगर किडनी या हार्ट या नर्व में अगर अनोमली हो तो बोन अनोमली को हम लो प्रायोरिटी देते हैं,
और उसका छानबीन करते, वी ट्राई टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम and then decide whether the spine needs to be addressed. Is there any question so far? I hope it's not too much of information. Yes. या कैन वी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्पाइना बाइफिडा पेशेंट्स को अगर स्कोलियोसिस है या नहीं है ऐसा या होने वाला है ऐसा? एक्चुअली ये दो अलग चीज है, बिकॉज स्पाइना बाइफिडा भी बर्थ डिफेक्ट है और कंजेनाइटल स्कोलियोसिस भी बर्थ डिफेक्ट है। तो दोनों इंट्रायूटेराइन सोनोग्राफी में पिकअप हो सकता है और वो प्रेडिक्शन है, यानी आपको 20 वीक्स के अंदर, एक्चुअली 12 वीक्स के अंदर वो पिकअप हो सकता है सोनोग्राफी में, बट उसके लिए थोड़ा सा तजुर्बा सोनोग्राफर का अच्छा चाहिए, द नियोनेटल सोनोग्राफर का। एंड जस्ट बिकॉज उसको मेनिंगोमाइलोसील या स्पाइना बाइफिडा है उसका मतलब नहीं उसको स्कोलियोसिस है, और जस्ट बिकॉज उसको स्कोलियोसिस है उसका मतलब नहीं उसको मेनिंगोमाइलोसील है यानी स्पाइना बाइफिडा है। ओके, हर बच्चे को जिसको स्पाइना बाइफिडा है उसको स्कोलियोसिस शायद नहीं हो, एंड वाइस वर्सा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस, Yeah, actually, I have one question, Please. डॉक्टर नेने। Yes. तो मेरा 12-13 तक मैं जब हाथ उठाता था, दोनों हाथ they were raising properly. After like 12-13, after my height increased a little, both hands they when I raise the hands, they're a little tilted. Like one hand is projecting outside towards one side and one is just going inside. So I have like a tilted like rib cage, that kind of thing. लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, लेकिन थोड़ा the fat deposition on one side is more compared to other. Yeah. So, when I said the growth spurt causes the deformity to worsen, most likely before the age of 10, your deformity was controlled. और उसके लिए, because अपना shoulder movement depends on the upper part of the spine. यानी अगर ऊपर की spine सीधी है, तो scapula जो shoulder की movement decide करता है, यानी shoulder blade की, Yes. वो alignment में correct रहते हैं। अगर आपका 10 और 12 years के बीच में एकदम से स्कोलियोसिस बढ़ गया, तो एक स्कैपुला टेढ़ा हो जाता है और उस वजह से अपना एक हैंड का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आपने यू हैव आइडेंटिफाइड इट करेक्टली, बट इट मैचेस विथ अ डिफॉर्मिटी दैट हैज प्रोग्रेस ड्यूरिंग योर सेकंड ग्रोथ स्पर्ट। बट इसमें सुधींद्र, फिजिकल थेरेपी बहुत फायदा करता है, और इस एट दिस पॉइंट आई लाइक टू से कि हम लोग काफी अंडर प्ले करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का रोल, एंड आई थिंक स्नेहल देशपांडे इज वन ऑफ द एक्सपर्ट फिजियोज हु इज ऑन योर पैनल, जो लोग इवन इन दिस कंडीशन ना बॉडी को रिकंडीशन करते हैं। जैसे एकदम सिंपल उदाहरण दूं कि अगर मेरा राइट हैंड इंजर्ड है तो मैं खाना बंद नहीं करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड से खाना सीखूंगा, बिकॉज खाना तो है। उसी तरह से अगर एक पार्ट ऑफ द बॉडी टेढ़ा है, हम लोग फंक्शनैलिटी, दिस इज नॉट अबाउट यू, दिस इज अबाउट अ जनरल स्टेटमेंट, हम लोग बॉडी की फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी तरह से सुधार सकते हैं बाकी की स्पाइन, बाकी के गुड ऑर्गन्स का यूज करके। और इसके लिए ये फिजिकल थेरेपी जो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, फिजिकल थेरेपी इज नॉट लाइक यू लर्न इट वंस एंड यू फिनिश, वो लाइफ लॉन्ग उसमें अपने को डाइव इन करना पड़ता है। ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है और ये बड़ा अंडर प्ले हुआ जाता है। एंड इनफैक्ट जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, फिजिकल थेरेपी की जरूरत बढ़ जाती है, बिकॉज बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। So older we get, the more physio we need. And physio is not a bad word. It's like like going to a gym to train muscles, because your muscle is the only tissue in the body that can regenerate. There's almost no other musculoskeletal tissue in the body जो ढांचे का मानते हैं, जिसको रीजनरेशन का पोटेंशियल है। अपने बोन्स खराब होते हैं, जॉइंट्स खराब होते हैं, नर्व्स खराब होती है, कार्टिलेज, लिगामेंट सब खराब होता है, बट मसल्स अपने को रेस्क्यू कर सकते हैं। यानी आप 90 साल की उम्र में भी बॉडी बना सकते हो। सो I'm just trying to create awareness के फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Is that like will that will cause any problem for organs? क्योंकि मेरे को थोड़ा हाइड्रोनेफ्रोसिस है, लेफ्ट किडनी में थोड़ा सा हाइड्रोनेफ्रोसिस है, और एब्डोमेन एरिया में फैट है, फैट डेपोजिशन, which is more on one side, which seems more on one side and less on other side. Yeah, so these are different things. The fat deposition is because of the asymmetry of the spine. क्योंकि स्पाइन एसिमेट्रिक हो जाता है तो एक साइड में फैट ज्यादा, जहाँ पे स्पेस ज्यादा है, फैट कलेक्ट्स इन द स्पेस वेयर इज स्पेस। हाइड्रोनेफ्रोसिस ये मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू द स्कोलियोसिस है, जैसे मैं बताया ना इस स्लाइड में कि स्कोलियोसिस और किडनी का ये बहुत कॉमन होता है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब आपको पता है कि किडनी में सूजन होने लगती है। उसका वजह है बिकॉज किडनी ड्रेन नहीं कर रही है बराबर से। अगर वो ड्रेनेज में ब्लॉक है
तो ब्लॉक को आप क्लियर करो तो हाइड्रोनेफ्रोसिस चले जाता है। तो आई होप सुरेंद्र यू हैव चेक दैट एंड सॉर्टेड, बिकॉज इसको पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, जो बड़ा कॉमन होता है ये कंडीशन में। तो वो किडनी के डॉक्टर देख के उसका इलाज कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे यूरोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बताया नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता। इट्स माय यूरोलॉजिस्ट, ही डिडंट मेंशन अबाउट दैट। ऑफ कोर्स आई हैव गॉट द एमआरआई डन एंड ultrasound and MCU and everything, but both seem to be have a normal ureter till bladder, like. Yeah. But I had left CIC for some years, so that maybe that is the reason, that is what doctor says, इसके लिए थोड़ा हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया। I used to pass on my own. या सो दैट इज वेरी कॉमन कि अगर आपका यूरिन कलेक्ट हो रहा है तो बैक प्रेशर से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस देता है। सो दैट यू मस्ट क्विकली चेंज दैट प्रैक्टिस, क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस फिर वो इरिवर्सिबल डैमेज करता है ना किडनी को, और बहुत बहुत छोटी चीज है जो आप अगर फॉलो करो तो वो नहीं होगा। No, now I'm following from past 2 years. I'm doing it. दैट्स गुड ऑन यू। Okay. Thank you. Thank you, ओके, doctor. तो प्रोग्रेशन डिपेंड होता है किस तरह से एनोमली है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये एनोमली और ये एनोमली में बहुत फर्क है। जैसे इसमें टेढ़ा या ट्रायंगुलर बोन है, लेकिन उसके दोनों ही बाजू में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, तो ये बहुत फास्ट खराब करेगा इस कर्व को। लेकिन ये वाला इनकार्सरेटेड यानी दोनों साइड से जैम्ड बोन है, तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं होती है, तो ऐसी स्पाइन जल्दी जल्दी ग्रो नहीं होती है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो कंजेनाइटल स्कोलियोसिस यानी जो स्कोलियोसिस में बोन टेढ़ा है या बोन का फॉर्मेशन बिगड़ा हुआ है, वो मेजॉरिटी बहुत प्रोग्रेस करते हैं, माइनॉरिटी प्रोग्रेस नहीं करते। और ये दोनों ग्रोथ स्पर्ट्स में ऑब्वियसली ग्रोथ स्कोलियोसिस की ज्यादा होती है। तो हम लोगों को जब कंजेनाइटल स्कोलियोसिस की केस आती है, उसमें हम लोग जल्दी इंटरवेंशन करने की तैयारी करते हैं, बिकॉज हमको उसके वो पता है कि वो अलग एनिमल है, अलग प्रॉब्लम है कंपेयर टू इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, जहां हम लोग राह देखते हैं कि ये थोड़ा चाइल्ड की एज बढ़ने दो, हाइट बढ़ने दो, फिर सर्जरी करेंगे, क्योंकि वो एक लीनियर पैटर्न में ग्रो होता है। कंजेनाइटल स्कोलियोसिस एकदम तूफान जैसे, जैसे यहाँ आप देखोगे एकदम एकदम तूफान जैसे बढ़ जाता है और वो अपने हाथ के बाहर चले जाता है। एंड एक बार वो कर्व बहुत बड़ा हो गया तो फिर उसका इलाज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड इट्स डूइंग टू लिटिल टू लेट। एंड अगर आप देखो हमारी तरफ से एज स्कोलियोसिस सर्जन्स, तो जितना जल्दी सर्जरी करो उतनी छोटी सर्जरी होती है, जितना लेट सर्जरी करो उतना बड़ा ऑपरेशन होगा। लेकिन जितना जल्दी सर्जरी करो उसका स्किल भी बहुत ज्यादा लगता है, बिकॉज बोन्स छोटे होते हैं, इम्प्लांट्स छोटे होते हैं, यानी उसकी वो सर्जरी करने की एपत या कैपेसिटी सर्जन में एंड सिस्टम में होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स एक बार आप यंग एज में सर्जरी करो, जैसे चाइल्ड की ग्रोथ होती है वो सर्जरी को चैलेंज हो जाती है, बिकॉज सर्जरी पे खींच आ जाती है, एंड कभी कभी ये फिर से सर्जरी करनी पड़ती है अगर आप बहुत अर्ली एज में करो तो। एंड अर्ली एज में जो सर्जरी करते हैं, जैसे ऐसे कर्व में हमको ऑलरेडी पता है कि ये हाफ बोन है और दोनों साइड में डिस्क दिख रही है, गैप दिख रही है, तो ये जल्दी खराब होगा। तो इसमें उसको हम हटा ही देते हैं, सर्जरी करके वो पूरे बोन को हटा देते हैं। ये जैसे कार्पेंट्री का काम है जिसमें नस को बचा के अंदर जाके बोन को हटा दो। ये मेरे बॉस डॉक्टर भोजराज का ओरिजिनल वर्क है, जिसमें छोटे से बड़े सिंपल इम्प्लांट्स, लेस एक्सपेंसिव इम्प्लांट्स यूज करके वो फिक्स हो गया स्पाइन। और ये चीज दुनिया में सिर्फ अपने इनोवेटिव सर्जन्स करते हैं, और कभी कभी जब वो बढ़ जाता है तब अलग सर्जरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस। ये भी स्पाइना बाइफिडा पेशेंट्स में काफी कॉमन है, बिकॉज न्यूरोमस्कुलर का मतलब क्या, कि जब हम स्पाइन की बात करें, स्पाइन ये शिप के मास्ट जैसे होता है कि स्पाइन सीधी है, शिप का मास्ट सीधा है, लेकिन अगर उसके रोप्स यानी सपोर्टिंग मसल्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो मास्ट धीरे धीरे गिर जाता है। तो न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस में जो आजू बाजू के सपोर्टिंग मसल्स है, जो यहाँ मैं रेड में बताया हूँ, वो आइदर ढीले हो जाते हैं, ढीले हो गए तो दूसरे साइड में स्पाइन गिरने लगती है, या टाइट हो जाते हैं तो स्पाइन उस साइड में खींची जाती है। तो ये दोनों सिचुएशन में न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस होता है। तो आप समझ सको कि ये किसको होगा जिसका मसल काम नहीं कर रहा। और स्पाइना बाइफिडा में डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द स्पाइना बाइफिडा एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्व, कई बार वो मसल काम नहीं करता, तो इस तरह का न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस की खासियत है कि बॉडी सहारा बिल्कुल देती नहीं है, यानी जब हम उसको करेक्ट करें, हम बॉडी पे डिपेंड नहीं कर सकते। जैसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई कि जानवी जी के साथ कि अगर एक कर्व को करेक्ट करो तो दूसरा अपने आप से हो जाएगा,
वो न्यूरोमस्कुलर में अनुमान नहीं रख सकते, बिकॉज मसल्स अपने को सहारा ही नहीं देते, मसल्स मरे पड़े हैं ऐसे समझो। सो ये लॉन्ग सी कोलैप्सिंग कर्व्स होते हैं, और इन बच्चों में लंग्स पे काफी असर आ जाता है। एंड कॉमनली इन बच्चों में सर्जरी के दो कारण होते हैं, कि आइदर बच्चा कहता है कि अभी तक मैं व्हीलचेयर पे बैठता था, बिकॉज दे आर मोस्टली पैरालाइज किड्स, व्हीलचेयर पे बैठता था, लेकिन अभी हैंड के सपोर्ट के बगैर मैं गिरने लगता हूँ। तो जो मेरे हैंड का काम था वो अभी ब्लॉक हो गया है, बिकॉज मेरे हैंड का सपोर्ट निकल गया तो मैं गिर जाऊंगा। अगर हैंड पकड़े रहूँ तो काम नहीं कर पाता हूँ। तो स्पाइन का बैलेंस की वजह से अगर जो इंपॉर्टेंट दो अवयव है, बिकॉज लेग्स आर नॉट वर्किंग, हैंड्स आर सो क्रिटिकल, और वो अगर अपने इम्प्रिजन हो गए, तो फिर हम लोग सर्जरी करके बैक को अपने आप से सीधा कर देते हैं, बैक को कोलैप्स करने से बचा देते हैं। दूसरा कारण है कि कर्व इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो कर्व की वजह से लंग दब जाता है। तो ये दो सिचुएशंस में हम लोग इन बच्चों में सर्जरीज करते हैं, और ये सर्जरीज का सक्सेस रेट काफी अच्छा होता है, लेकिन बड़ी सर्जरी होती है, और वो सिर्फ स्पाइन को सीधे रखने का काम करती है, वो स्कोलियोसिस को क्योर नहीं करती है या नर्व्स को क्योर नहीं करती है। तो अपने को अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इलाज करना पड़ता है, ये स्लाइड में यही बता रहा हूँ, बिकॉज कंजेनाइटल स्कोलियोसिस और न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस का जो स्पेक्ट्रम है वो इतना वाइड है कि पहले अपने को स्कोलियोसिस नहीं देखना है, अपने को बाकी की चीज देखनी है, बच्चे की बाकी की हालत देखनी है, और फिर निर्णय लेने का ये पूरे इलाज में स्कोलियोसिस का कितना प्रायोरिटी या इम्पोर्टेंस है। तो ये चीज एज स्पाइन सर्जन हमको इम्पोर्टेंटली रखनी पड़ती है, बिकॉज पेरेंट्स स्कोलियोसिस देख के डर जाते हैं, लेकिन अपने को उनको बताना पड़ता है कि बिग पिक्चर क्या है, और उसमें उनको स्कोलियोसिस का कहाँ हिस्सा है वो बताना पड़ता है। न्यूरोफाइब्रोमा ये काफी स्पेसिफिक चीज है, इसको हम लोग डिस्ट्रोफिक स्कोलियोसिस कहते हैं, और ये आपको बहुत जानने की जरूरत नहीं है, बट न्यूरोफाइब्रोमा में नर्व के ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स, नॉन कैंसरस ट्यूमर्स, कैंसर वाले नहीं ट्यूमर्स, बट ये इतने बड़े बड़े ट्यूमर्स होते हैं कि वो बोन को खा जाते हैं, और फिर वो बोन कोलैप्स होने लगता है। और आपने ऐसे लोग देखे होंगे, अनफॉर्चुनेटली सिग्नल्स वगैरह पे आपको दिखते हैं ऐसे लोग, बट इसके वजह से नॉट ओनली दिखने में खराबी दिखती है, बट ऑल्सो बोन्स खराब हो जाते हैं, और ये हमारे लिए काफी चैलेंजिंग स्कोलियोसिस हो जाता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ स्कोलियोसिस। कोई सवाल आपकी तरफ से? इफ नॉट, जब हम स्कोलियोसिस के बच्चे को देखते हैं, या स्नेहा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Sir wants. A few questions, but मैं बाद में पूछता हूँ। बट वी कैन आस्क नाउ सर, अप टू यू। अच्छा, यार एक क्वेश्चन में भी वो इन्वेस्टिगेशंस और इस पे है कि स्कोलियोसिस के केसेस में क्या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट रिपीटेडली हमने करने चाहिए, या कुछ बेसलाइन लंग फंक्शन टेस्ट करके उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए एज द चाइल्ड इज ग्रोइंग, और अगर करने की जरूरत है तो कितने जल्दी उसको वी शुड कीप ट्रैक ऑफ दैट? सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन सर। सर का सवाल है कि स्कोलियोसिस की वजह से लंग पे असर आता है, तो उसकी पहले जानकारी होनी चाहिए कि नहीं। तो अर्ली ऑनसेट स्कोलियोसिस, यानी जो बच्चे 10 के एज के पहले से अपने पास आते हैं डिफॉर्मिटी लेके, उनको डेफिनेटली लंग की जांच करनी चाहिए, और उसके बेसिस पे एक्चुअली हम लोग डिसाइड करते हैं कि उनको स्कोलियोसिस सर्जरी की जरूरत है कि नहीं। टू दी एक्सटेंट अभी तक हमने हमारी टीम में 3 बार ऐसे नौबत आई है कि न्यूबॉर्न बेबी वेंटिलेटर पे फंसा हुआ था, न्यूबॉर्न नहीं बट अंडर 1 ईयर ऑफ एज, और उसका वेंटिलेटर छूट नहीं रहा था, वो ब्रीद ही नहीं कर पा रहा था, और उसका वजह था स्कोलियोसिस। और 11 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 14 मंथ्स, ये 3 बच्चों में हमने उस एज में सर्जरी की, और उसका वेंटिलेटर छूट गया, जो 6-6 महीने वेंटिलेटर पे थे। तो यंग, जितना यंग चाइल्ड हो उतना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसमें प्रॉब्लम है कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ये वॉलंटरी टेस्ट होता है, जिसमें अपने को जोर से फूकना पड़ता है, और छोटे बच्चे वो कर ही नहीं पाते, तो वो थोड़ा सा डाइकोटोमी हो जाता है। दूसरा है कि जो स्कोलियोसिस 90 डिग्रीज टच होता है, यानी काफी हाई डिग्री, उनमें लंग पे परिणाम होता है। तो हमारे पास जो इडियोपैथिक स्कोलियोसिस की पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं, उनका टिपिकली 40-50 डिग्री कर्व होता है, जिनमें पल्मोनरी इश्यू इतना नहीं आता। पेरेंट्स डरे होते हैं बिकॉज उन्होंने पढ़ा होता है, पर उनको हमको थोड़ा सा थमाना पड़ता है कि भैया ये डिफॉर्मिटी है, कॉस्मेटिक है, बट इसका लंग पे असर नहीं आएगा। लेकिन जब वो 90 डिग्रीज तक जाने लगता है तब इसका लंग पे असर आता है। और फिर आपका सवाल था कि हाउ ऑफन इसको चेक करना चाहिए।
तो हम लोग चेक करने से ज्यादा उनको हेवी ड्यूटी पल्मोनरी रिहैब पे डालते हैं। फिर अगेन आई एम टॉकिंग ऑफ स्नेहल्स रोल के फिजिकल थेरेपी करके लंग की कैपेसिटी जितना आप मैक्सिमम रख सको उतना आप उसको टिका सकते हैं। बिकॉज एक्चुअली सर यू वुड नो, बट ये थोड़ा पब्लिक में जानकारी कम है कि लंग फंक्शन ये स्पाइन हाइट से गिना जाता है, और जैसे स्कोलियोसिस बढ़ते जाता है आपका लंग फंक्शन प्रोपोर्शनेटली कम होता है, तो एक्चुअली पीएफटी खराब नहीं दिखती है बट लंग फंक्शन खराब होते जाता है। और Right. जब हम स्पाइन को सीधे करते हैं प्रोपोर्शनेटली लंग फंक्शन इंप्रूव होता है, बट पीएफटी इतना इंप्रूव नहीं होता बिकॉज पीएफटी इज अ प्रोपोर्शन ऑफ द स्पाइन हाइट। सो वो थोड़ा सा अगेन डाइकोटमी है। तो हम लोग ऐसी चीजें यूज करते हैं जैसे वन ब्रेथ काउंट। जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि आप एक लंबी सांस लो और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की कहाँ तक काउंट कर सकते हो उसका आप याद रखो, और ये आप महीने महीने में देखते रहो। या कैंडल कितने दूर से ब्लो कर सकते हो, आप कैंडल लगाओ और करके उसको ब्लो करो, तो आप अगर 6 इंच में ब्लो कर सकते हो 7 इंच में, वो Right. महीनों में कैसे तो ये होम बेस्ड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो सकता है। Mm. थैंक I यू सर। think we should use these tests more often. I mean, we'll now this candle blowing test of one breath count, यस and I think it'll be even kids would like to do that and it'll be enjoyable as well. यस But yes, yes, yeah, great. Thanks, Abhay. तो जब हम स्कोलियोसिस के बच्चे को देखते हैं तब हम लोग पहले उसकी एज पूछते हैं, बिकॉज जिन्हें अभी तक आपने सुना है कि एज बड़ा क्रिटिकल फैक्टर होता है ये स्कोलियोसिस किस लाइन में प्रोग्रेस होगा। तो जितना यंगर चाइल्ड उतना खतरनाक स्कोलियोसिस ऐसे हमारे में माना जाता है, बिकॉज उसके ग्रोथ स्पर्ट्स बाकी है, और यंग चिल्ड्रन में स्कोलियोसिस के अलावा और प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हाई होते हैं। अगर बच्चा 14 साल का अपने पास प्रेजेंट होता है तो वो नॉर्मली इडियोपैथिक में गिना जाता है। फिर हम लोग बर्थ हिस्ट्री एंड ब्रदर्स सिस्टर्स में हिस्ट्री पूछते हैं, बिकॉज ये सब चीज अगर है यानी बर्थ में कोई प्रॉब्लम था बर्थ देने में, तो उसमें न्यूरोमस्कुलर सेरेब्रल पाल्सी रिलेटेड स्कोलियोसिस का चांस ज्यादा है। अगर ब्रदर्स सिस्टर्स में है तो कॉन्जेनाइटल का चांस ज्यादा है। और फिर प्रोग्रेशन, अगर पेरेंट्स कहे कि पिछले साल में एकदम से बढ़ गया तो वो भी एक रेड फ्लैग होता है, बिकॉज नॉर्मल स्कोलियोसिस बड़े स्लोली ग्रो होते हैं। ऑफकोर्स ग्रोथ स्पर्ट में वो खराब हो जाते हैं बट अदरवाइज एकदम फास्ट नहीं होते। टिपिकली स्कोलियोसिस के बच्चों को कंप्लेंट्स नहीं होती है, और वो जब प्रेजेंट करते हैं तब उनको सिर्फ कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी होती है। अगर उनको कंप्लेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं यानी ये काफी केस हद से बाहर चले गया है। और हम ऑल्सो पूछते हैं कि अगर आप कॉस्मेसिस के लिए आए हो यानी आपको अगर ये दिखने में खराब दिखता है तो आपको एक्चुअली उसका क्या प्रॉब्लम है। जैसे कोई कहता है मेरा शोल्डर हाई है जो मुझे पसंद नहीं है, कोई कहता है मेरा चेस्ट बाहर है या बैक बाहर है, या कोई कहता है फ्लैंक क्रीज है, जब मैं साड़ी पहनती हूँ तब यहाँ डीप क्रीज दिखता है। तो वो स्पेसिफिक चीज पूछना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमको पता होना चाहिए कि हम उसको ठीक कर सके। ऐसे नहीं हो कि एक्सरे को हम ठीक किए लेकिन पेशेंट अनहैप्पी रहा। सिमिलरली अगर नॉन इडियोपैथिक स्कोलियोसिस का बच्चा आता है तो हम हम जानना चाहते हैं उसको स्कोलियोसिस की सर्जरी करनी क्यों है। और आपको थोड़ा सा मैं ड्रामेटिक उदाहरण दूंगा, लेकिन अगर कोई बच्चा यानी ये थोड़ा नॉन अलाइंड है अनइमोशनल एग्जाम्पल है बट ये इंपॉर्टेंट है कहना कि कभी कभी न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस के बच्चे की लाइफ स्पैन ही छोटी होती है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी कभी कभी और 6 या 12 महीने उसकी लाइफ स्पैन है, लेकिन ही इज कम टू यू फॉर सेइंग कि मुझे टेढ़ा बैठना पसंद नहीं है, तो उसमें सर्जरी करना करेक्ट नहीं होता। बिकॉज शॉर्ट लाइफ स्पैन में आप 3 4 महीने सर्जरी के पीछे ही रहोगे, और ही वोंट एंजॉय द फ्रूट ऑफ योर सर्जरी बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू लिव दैट लॉन्ग। सो ये परोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये चाइल्ड का रिक्वायरमेंट क्या है और वो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं। और फिर जब हम देखते हैं तब हमको 3 4 या 6 8 चीजें देखनी पड़ती है कि पहले शोल्डर हाइट कैसा है, नेक टिल्ट कैसा है, ट्रेपीजियस यानी ये जो मसल है जो मैं एरो से बता रहा हूँ वो कितना मोटा दिख रहा है, छाती आगे से पीछे से कैसी है, फ्लैंक क्रीज यानी यहाँ पे जो क्रीज लगी होती है वो बढ़ गई है कि नहीं, पेल्विस यानी जो हिप्स है वो ऊपर नीचे दिख रहे हैं क्या, लेग में लेग लेंथ में कोई फर्क है क्या कि एक लेग ज्यादा लॉन्ग एक लेग छोटा, एंड न्यूरोलॉजी यानी एक लेग पतला एक लेग मोटा ये कैसा है। तो ये चीज हम नॉर्मली देखते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं, और इसमें कौन सी चीज हम करेक्ट कर सके और कौन सी चीज नहीं ये हम लोग पेशेंट से डिस्कस करते हैं। और ये एक आपने इसके बारे में काफी सुना होगा, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है, यानी बिकॉज स्कोलियोसिस
1 in 700 बर्थ्स वगैरह जैसा कॉमन है। स्कूल स्क्रीनिंग ये काफ़ी बड़ी बात है इसके लिए, जो अपने देश में बहुत होता नहीं है, बिकॉज ये एडोलेसेंट गर्ल्स में ज़्यादा है और वो काफ़ी शाय होते हैं स्क्रीनिंग के लिए। तो एक इजी मेथड होता है कि आप उनको बेंड कराओ तो वो स्कोलियोसिस प्रोमिनेंट हो जाता है, यानी रिब का हाइट टर्न हो जाता है। और ये स्कोलियोमीटर कहते हैं जिसको, अगर वहां रख दो तो उसमें वो टिल्ट दिख जाता है। बेसिकली अगर आप बच्ची को बेंड कराओ और एक साइड से पीछे की चेस्ट ऊपर आ गई तो फिर इसमें एक्सरेज वगैरह करने की जरूरत हो जाती है। तो इसको हम लोग स्क्रीनिंग मेथड कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग एग्जामिन करके डिसाइड करते हैं अपने को इलाज क्या करना है, और फिर हम लोग बेंडिंग एक्सरेज करके कर्व की फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, यानी ये कर्व कितना लवचिक है। बिकॉज अगर कर्व लवचिक है तो हम लोग सर्जरी इजीली कर पाएंगे। अगर सर्जरी इजी है तो सर्जरी डिले भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि अभी आप अगर कर्व लवचिक है तो और 1 साल रुक जाओ, क्योंकि चाइल्ड उतना बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, तो सर्जरी को डिले करो अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। अगर वो रिजिड होने लगा यानी फिक्स होने लगा तो फिर ये सर्जरी लेट हो जाएगी। उस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसको कैसे सर्जरी करनी है। और टिपिकली जो फाइनल असेसमेंट के बाद इलाज होता है ना, वो ये 5 या 4 स्टेज या 4 ऑप्शंस होते हैं। एक यानी ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन यानी हम हमारे मन में ऐसा ऐसा डिसीजन लेते हैं कि ये आज की तारीख में प्रोग्रेस नहीं होने वाला, अपने को नेक्स्ट 6 मंथ्स आराम से वेट कर सकेंगे। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं कि पेरेंट्स को हम लोग बताते हैं कि किस तरह से इसको ऑब्जर्व किया जाए। उनको हम लोग टिप्स देते हैं किस तरह से आपको पता पड़े ये बढ़ रहा है कि नहीं। उनको हम लोग हाइट मॉनिटरिंग कहते हैं, अगर हाइट एकदम से बढ़ गई तो जल्दी चले आना। हम लोग नॉर्मली उनको कहते हैं 6 मंथ्स बाद सिर्फ दिखाने आना, हो सके तो फोटोज ले लो स्कोलियोसिस बच्चे के, एंड 1 ईयर में एक्सरे करो। बाकायदा 2-2 महीने में एक्सरे करके आप बच्चे को रेडिएशन करने वाले हो। सो मिनिमम टाइम बिटवीन 2 एक्सरे शुड बी 1 ईयर एंड मिनिमम टाइम बिटवीन अ फॉलो अप शुड बी 6 मंथ्स। 2-2 महीने में मिलके भी फायदा नहीं होता। और ये ऑब्जर्वेशन में पेरेंट्स एडुकेटेड एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अगर ये कर्व डिकम्पेंसेट हो रहा है या अगर ये हाई डिनोमिनेशन का कर्व है या यंग चाइल्ड है तो ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है। जब हम ऑब्जर्वेशन चूज करते हैं, जब हम चूज करते हैं कि आज की तारीख में इसको ब्रेस या सर्जरी की जरूरत नहीं है, तब ये 4 चीज हम ऑलवेज उनको सजेस्ट करते हैं। पहला यानी बैक को लवचिक रखने के लिए स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज जो योगा और उसमें आ जाते हैं। फिर स्विमिंग जैसे एक्सरसाइज जो लंग की फंक्शन को अच्छा रखते हैं एंड बैक को आर्च करके स्ट्रेंथ दे देते हैं। फिर स्पेसिफिक फिजिकल थेरेपी जो अगेन फिजियोथेरेपिस्ट सिखाते हैं, जो बड़ा क्रिटिकल हो जाता है बिकॉज इससे बैक की स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। यानी जो स्पाइन कोलैप्स होती है उसको दोनों साइड से मसल्स खड़े रखते हैं। एंड देन हैंगिंग बार जिसमें ट्रैक्शन या स्ट्रेच हो जाता है, जिसमें स्पाइन की लवचिकता बढ़ जाती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके आगे का इलाज है ब्रेसिंग, जो बहुत लेस कॉमन इलाज है बिकॉज ब्रेसिंग का एविडेंस अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। और ब्रेसिंग यानी हम बाहर से चाइल्ड को पट्टा पहनाते हैं इस तरह का, और ये पट्टे से देखा जाता है कि स्पाइन सेंट्रलाइज होती है, कर्व करेक्ट नहीं होता। स्पाइन सेंट्रलाइज हो गया, यानी ये किसमें यूज करेगी, जब डीकॉम्पेंसेटेड चाइल्ड है, जैसे जिसका सर बाहर जा रहा है उसको हम लोग ब्रेस पहना के सर को अलाइन में कर सकते हैं। और ऐसे चाइल्ड में जो बड़ी छोटी है, जिसको अपने को वेट करना है सर्जरी के लिए लेकिन वेट करे तो कर्व बढ़ जावे, सो ब्रेस का फायदा है कि वो कर्व को कंटेन कर सके या रोक सके, लेकिन सुधार नहीं सकता। तो उससे हम सर्जरी डिले कर सकते हैं। ब्रेस का प्रॉब्लम है कि जो भी रिसर्च में ब्रेस का फायदा दिखाया है वो अपने को 20 to 23 आवर्स पहननी पड़ती है। और ये ब्रेस अपने जैसे कंट्री में जहाँ पे इवन टी शर्ट में अपने को स्वेट आता है, ये ब्रेस लोग पहनते नहीं है। तो ब्रेस का कंप्लायंस यानी लोगों को वो पहनने की कैपेसिटी बहुत बुरी है अपने जैसे कंट्रीज में, उसके लिए हम लोग ब्रेस का इस्तेमाल इतना कॉमनली करते नहीं है। और जब हम सर्जरी करते हैं, ये थोड़ा सा आखिरी पार्ट है, लेकिन सर्जरी में आइडियल जितनी लेट सर्जरी करो उतना ग्रोथ पे असर कम होगा। लेकिन नॉर्मली 40 डिग्रीज के आगे हम लोग सर्जरी की बात करते हैं, बिकॉज जैसे मैं बताया कि स्कोलियोसिस ग्रोइंग से बढ़ता है, जैसे ग्रोथ होती है तब तक स्कोलियोसिस बढ़ेगा।
उसका ये भी मतलब है कि जब ग्रोथ खत्म हो जावे बाय एज ऑफ 10, 11, 12 जो भी, स्कोलियोसिस बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो 40 डिग्री टच हुआ है बाय देन, तो वो बकायदा एवरी ईयर अंटिल लाइफ इज ऑन 1 to 2 डिग्री बढ़ते जाता है ग्रेविटी की वजह से। और उसके लिए ये फिगर्स हम लोग देते हैं कि 40 के ऊपर का स्कोलियोसिस को हम लोग नॉर्मली सर्जरी सजेस्ट करने लगते हैं। एंड वो सर्जरी किस तरह की होती है, तो अगर बहुत छोटा बच्चा हो जिसमें ग्रोथ अभी काफी है, तो उसको हम लोग ग्रोइंग सर्जरीज करते हैं, जिसमें एक कास्टिंग है, जिसमें हम लोग प्लास्टर लगाते जाते हैं और चाइल्ड को वो प्लास्टर में ग्रो कराते हैं। या फिर ग्रोइंग रॉड्स है, जिसमें हम लोग इस तरह के रॉड्स डालते हैं जो टेम्पररी फिक्सेशन है, जो अंदर से स्पाइन को खींच देते हैं। और हर 6 महीने हम लोग अंदर जाके ये नॉब को ओपन करके छोटे सर्जरी से रॉड को लंबा करते हैं, यानी जैसे चाइल्ड ग्रो हो वो रॉड भी हम लोग ग्रो कराते हैं, यानी ये कर्व रेल ट्रैक में ग्रो होते जाएगा। और यानी हम लोग ग्रोथ रोकते नहीं है, स्कोलियोसिस को पार्शियली करेक्ट करते हैं, बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन कंटेन करते हैं। और जब एक टाइम आता है जहां ग्रोथ हो गई, जैसे 8, 9, 10 साल की एज में, तब हम लोग फाइनली सर्जरी करते हैं। ये दिखने में बड़ा प्यारा दिखता है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और इसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो ये करने के पहले हम लोग पेरेंट्स के साथ लंबी लंबी डिस्कशंस करते हैं, एंड देन हम लोग ये सर्जरी अलाउ करते हैं। लेकिन इसका अगर अच्छा रिजल्ट आवे, तो हम लोग चाइल्ड को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, यानी चाइल्ड की साइज अच्छी बढ़ सकती है, और फिर उसको फाइनल सर्जरी करते हैं। और जो कॉमन सर्जरी इडियोपैथिक स्कोलियोसिस में है, वो बड़ी कार्पेंट्री टाइप सर्जरी है, जिसमें हम लोग स्क्रूज अलग अलग लेवल पे डाल के स्पाइन को ढीला करके फिर वो स्पाइन को रॉड से रीअलाइन कर देते हैं और बैक को सीधा कर देते हैं। तो सर्जरी का यही मकसद होता है कि आप स्पाइन को लूज करो, उसमें एंकर्स डालो और फिर रॉड के साथ उसको सीधे कर दो। तो इस तरह की सर्जरीज कॉमनली हम लोग करते हैं स्कोलियोसिस में, जो आजकल काफी सेफ है, आजकल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और काफी कॉमन भी हो चुकी है। तो जब जरूरत है तब ये सर्जरी में आजकल हम लोग डरते नहीं है। तो दैट इज माय गेम। एंड अभी कोई भी सवाल या जवाब हो तो हम हैप्पीली डिस्कस करें, बट आई होप कि ये बहुत ज़्यादा हाई फाई लेक्चर नहीं हुआ, यानी लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ गया, बिकॉज ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, इवन डॉक्टर्स के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो उसको जितना हम सिंप्लीफाई कर सके उतना मैंने ट्राई किया। और अभी आपके अगर सवाल हो तो मैं हैप्पीली लूंगा, और नहीं हो तो आपके पास ये रिकॉर्डिंग रहेगी, और इवन मैं ये पावर पॉइंट शेयर करूंगा स्नेहा मैडम के साथ, यानी आपको ये बार बार अगर देखना है तो आप देख सको। Sure. Chandana, you want to say something? Hi, yeah. Hi, sir. Thank you so much for the just presentation explanation. It's like super helpful because I think a lot of us didn't know what scoliosis is growing up. So it's really nice to have a rundown on what everything is and kind of catch up and be aware of the things that we need to look out for in the event adults. Because in like I have like is there any sleeping positions of some sort that you think would be helpful specifically for people that have, I don't know, like scoliosis, that especially in the adults, because I feel like sometimes we are traveling for employment or for schools, or we sit for a long hours in the office or at classrooms, and we don't really know the pain or the discomfort until it's too late. So, and sometimes I have the issue, I have physiotherapy every single day and I go to gym, but it's just sleeping, it's just never comfortable. And I feel like I'm only comfortable in that one position. And even if there is any unequal bed that I sleep in the day before when I'm traveling or something, it really kind of gives me a shooting pain somewhere in the spine, the cervical area. So I was wondering that, do you have any advice in terms of, okay, what are the sleeping positions that you think your would be question helpful? is very relevant, but I must tell you at the beginning that scoliosis does not get affected by the sleeping position because there's no gravity involved. So even if you have a completely crooked spine, you can sleep any way you like. But to address your question about pains, aches that happen in a bad posture of sleeping, the best position to sleep from a spine perspective, हम लोग कह रहे हैं सोने की क्या बेस्ट पोजीशन है स्पाइन के लिए, स्कोलियोसिस के लिए, बट स्पाइन के लिए तो ये फीटल पोजीशन होती है। यानी छोटे बच्चे जब करवट पे सोते हैं, कीपिंग द बैक स्लाइटली कर्व्ड एंड द नीज स्लाइटली बेंट, अगर इसके ऊपर आपको नीज के बीच में पिलो रख सके तो दैट फर्दर प्रिवेंट्स द स्पाइन फ्रॉम ट्विस्टिंग
And most important, Joe, I think Chandana, you're missing out is the pillow. And there's a myth amongst people that pillow is bad, but actually, if you sleep on the side, you should not only have a pillow but a double pillow. This entire area should get covered, otherwise your neck tends to fall off. And रात को specific क्या होता है कि अपने muscles switch off होते हैं. So today, if I twist your neck, you'll automatically correct it. You won't allow me to twist it. But in the night, your muscles are anesthetized. They're literally off. So your neck will fall in a position that is unphysiological for you. These nerves will get compressed, these will get stretched, and you'll come out, waking up with pain. तो अगर आप करवट पे सोने वाले हो, मोटी तकिया पिलो रखो, और ये पार्ट को भी अगर आप फिल कर सको, यानी लिटरली इफ यू हैव समथिंग और अ टॉवल हियर, that is the ideal position, so even your shoulder doesn't get loaded too much. If you sleep on your back, जिनको पीठ पे सोने की आदत है, तो नीज को अगर थोड़ा बेंट रख सको तो स्पाइन का लोड कम हो जाता है. और फिर आप तकिया छोटी लेना, बिकॉज अगर फिर मोटी तकिया लो तो सर बेंट रह जाएगा. अगर आपको एक ही तकिया यूज करनी है, यानी आप कभी कभी साइड में सोए, कभी कभी बैक पे, तो मोटी तकिया ले लो, छोटी से ज्यादा, और वो तकिया शोल्डर्स के पीछे से लेना. टेक द पिलो फ्रॉम बिहाइंड द शोल्डर्स रादर देन द हेड, so the head is not twisted. So if these are followed, and of course, Chandana, you mentioned that if the bed is crooked, then of course you're in trouble. So when we travel and we are in a foreign bed and you find that either the bed is very soft or crooked, it's best to sleep on the floor, because that's that at least gives you the right support and you're not in trouble. So I hope that addresses your question. Yeah, thank you so much. And also, I hear like a lot of the times the exercise ball, the bumpy big exercise ball that we usually take this year. Do you think that is helpful in terms of like Sorry, creating I did not talk flexibility? about sitting posture. तो सिटिंग ये पैसिव एक्टिविटी है, और इसके बारे में दो चीज आपको सबको जाननी चाहिए कि सिटिंग में स्पाइन पे जोर 2 गुना ज्यादा आता है स्टैंडिंग से. अपने को सिटिंग कंफर्टेबल लगता है, बट एक्चुअली सिटिंग बैक के लिए वर्स पोजीशन है. तो अगर अपने और दूसरी उदाहरण दिया कि स्पाइन टेक्स लोड बट 50% लोड इज टेकन बाय द मसल. When we sit, after a point, the muscles stop working and the load is entirely on the spine. So if you want to sit, you have to sit actively. Actively का मतलब आगे सरक के muscles का इस्तेमाल करके बैठो, passively मत बैठो टेका लेके, क्योंकि फिर आप muscle को और सोने में प्रोत्साहन दे रहे हो. So sitting at the edge of the seat with your back upright using your muscles is tiring. It will take you some time to get used to it, but that is the correct way to sit, rather than sitting slouching with a backrest. And an exercise ball does exactly that. When you're on an exercise ball, if you even let go a little bit, you'll fall. So you're continuously sitting. So that's called active sitting. So yes, the answer is that exercise ball is a great way to sit. Bar stools, high sitting is a great way to sit, or standing desk is the way to go. So my boss, Dr. Bhojraj, has started this in our clinic, that all of us stand for 8, 9, 10 hours throughout the day, and we don't sit. The chair is kept empty. So we walk the talk. So anyone who comes saying that when I sit, I get back pain, we say, see, I'm not sitting. The chair is empty. Learn to do your business is standing up. Yeah, thank you so much. That's really helpful. Yeah, thank you. I have a question. It's like if the child is not able to sit much, so she lies down most of the time. So half the time she's sitting. Hello, am I audible, doctor? Absolutely, absolutely. Yeah. So she prefers to lie down half of her day, and half of the day she prefers to sit in the chair. So I think that is worsening her scoliosis. That's what I feel. Yeah, I And think you're she right. sleeps prone. The reason is because when she lies down, she's deconditioning her muscle. So whatever the muscle support she was getting for the scoliosis, that muscle needs to be conditioned, and lying down will decondition it. I hope you're getting my point. यानी Yeah, I do understand, but she's listening to that. So I asked that question. My daughter is also on the Zoom meet, Yeah, and yeah. she's listening. But then she gets tired, all the time sitting. So I don't know what is the right thing. How So much to there are methods. I fully appreciate that she gets tired while sitting. So there are methods. So some methods involve giving lateral supports. For example, जब हम बैठते हैं तब the entire load is on the back. And if her Right. back is bent and it's getting tired out, if we have some kind of stirrups where she can use the hands to sit up, there are Right. some almost like a traction device. Then there are angled or wedged pillows. So when you sit, this happens. But when you're sitting on a wedged pillow, the shape of your spine changes. So the distribution of load changes. Then there Okay. are actually handles. If the hands are in good shape, you use handles to try and suspend yourself intermittently, so your back gets offloaded and you feel that kind of a sense. So
there are methods. There are sometimes reclining chairs. So there are methods by which you can keep her busy in the way she sits. And All sometimes there, of course, lumbar roll. So you have to think out of the box. But the less she sits, the less she's going to be able to sit. So she should be, coaxed. That is what I'm finding now, that the less she sits, the duration has become very less. So in the morning when she gets up, she's up for a while and then she wants to lie down. Yeah. And she would, because her hands are the only thing which can work. So she would lie down prone and do her things. But the lower part of her body is completely inactive. So that is causing more of the scoliosis to increase. I fully Another agree with what you. I'm finding is she's got a lot of tingling in her hands. So is it because of the scoliosis? It's less likely, but it's more likely because of the poor muscle support to the neck. All right. If the weakness in the muscles is gone up to here, there's Yeah. overloading of the neck. But of course, there's an easy way to find out that if neck movements cause tingling to become more or less, then it is more likely that, because there are two other reasons why neuromuscular or congenital scoliosis get hand numbness. One is stretch on the brachial plexus because they are sloppy, so इसमें खींचा जाती है. And sometimes small nerves, because of the way they sit or sleep, get compressed. So if she has really tingling in the hands with nothing going up, just in the hands, it's more likely a small nerve. If neck movements cause that tingling to become more or less, then it's more likely neck. Okay, I'll check that. Yeah. Thank you, doctor. Not at all. Khushi, you can ask. Khushi, you're not audible. Am I audible? Yes, Yes. yes. So डॉक्टर मेरा जो स्कॉलियोसिस हुआ खुशी म्यूट पे हो. खुशी आप म्यूट पे हो. No, I'm not. Now can I audible? Yes. Yeah, okay. सर मेरा जो स्कॉलियोसिस है मैं 13 साल की थी तब से बढ़ रहा था, बट तभी मुझे कभी इतना प्रॉब्लम नहीं आया है. बट लास्ट जनवरी में इस साल में मेरा एक हिप एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मुझे हिप में प्रॉब्लम हुआ था. तो मुझे 2 मंथ्स मैंने बेड रेस्ट लिया था और उसके बाद से मेरा बैक पेन बहुत बैडली बढ़ते जा रहा है. एंड आई फील कि अब लास्ट 2.5 मंथ और 2 मंथ्स में मेरा स्कॉलियोसिस 40% से ज्यादा बढ़ गया है. और अभी अपनी एज कितनी है खुशी? खुशी का सवाल 33 years की है. हाँ. सो इसमें ना 33 की एज में स्कोलियोसिस बढ़ना बहुत मुमकिन नहीं होता, स्लोली ही बढ़ता है. लेकिन पेन का वजह मैं समझ सक रहा हूँ कि जब आपने बेड रेस्ट लिया, आपके मसल्स जो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे वो और कमजोर हो जाते हैं बेड रेस्ट से. तो सिंपल आंसर है कि अगर आपको स्कोलियोसिस बढ़ने की डर है तो एक्सरे में दिख जाएगा. और वो आज एक एक्सरे लो, 1 साल के बाद एक्सरे लो, और आपको क्लियरली दिखेगा कि ये बढ़ रहा है कि नहीं. घर बैठे अगर आपको अंदाज लगाना है कि स्कोलियोसिस बढ़ रहा है कि नहीं, तो आप सिटिंग हाइट माप लो. जब हम बैठते हैं तब पीछे एक अगर आप पेंसिल से मार्क करो और वो अगर सिटिंग हाइट कम होते जा रही है तो स्कोलियोसिस बढ़ रहा है. और पेन का इलाज एक्चुअली फिजिकल थेरेपी है. 33 की एज में अगर स्कोलियोसिस एक्चुअली इतना बढ़ नहीं रहा तो सर्जरी से अच्छा फिजियो इसको फायदा करता है. और फिजियो से जो मसल्स अपने पीछे पड़ गए उसको हम जल्दी जल्दी काम पे लगा देते हैं. गर्ल्स में फिजियो के अलावा कैल्शियम एंड विटामिन डी और कभी कभी बोन डेंसिटी का भी मामला होता है, जो चेक करके उसमें कमी हो तो उसकी भरपाई करते हैं. सर एक्चुअली में मैंने ऑलरेडी, मुझे ऐसे तो 9 मंथ से ही पेन लिटिल बिट स्टार्ट हो गया था. तो मैंने सितंबर और नवंबर में एक एक्सरे किया था मेरा स्पाइन का ही. और उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने जस्ट दिस 13th मतलब 13th ऑफ मई को एक्सरे किया है. तो उसमें काफी चेंजेस है. लाइक मेरा 40% से भी ज्यादा स्कॉलियोसिस बढ़ चुका है, वो एक्सरे में ही दिखा रहा है. और इवन अब मुझे बैलेंसिंग के लिए प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ वीडियो एडिटर और मेरी हाइट वैसे ही 13 ईयर्स से ही ज्यादा ग्रो हुई नहीं है. माई हाइट इज समथिंग 3.5 और उतनी है, मेरी हाइट ज्यादा ग्रो हुई नहीं है.
और फिजियोथेरेपी आई एग्री, बिकॉज मैंने लास्ट जो अभी मैं बेड रेस्ट पे थी तो मैंने देखा था कि फिजियोथेरेपी से ही हमारी बॉडी बहुत एक्टिव हो रही है। बिकॉज 15 डेज में फुल्ली बेड रेस्ट पे थी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब उठना है। तो मुझे पता चला कि मुझे फिजियोथेरेपी ही करना पड़ेगा और उससे आई एम कम टू बैक। बट मेरे अभी भी मैं योगा और फिजियोथेरेपी मेरा कंटिन्यू है। तो मेरी बॉडी के मूवमेंट्स बहुत अच्छे रखे हैं मैंने। और मैं जितना हो सकता है मेरी व्हीलचेयर से भी आगे आके बैठती हूँ ऑलवेज, बिकॉज वो मेरी बचपन से आदत है एज अ वीडियो एडिटर कि हम आगे आगे बैठते, पीछे बैठते हमें पता है कि और ज्यादा हमें पेन होता है। बिकॉज समटाइम आई हैव टू, मुझे कई बार मुझे मेरे वर्क की वजह से 13-13 घंटे भी बैठना पड़ता है। तो कोई बट के अगर आप फ्रीली बैठ पा रहे हो विदाउट यूजिंग हैंड, जैसे आप आगे आके बैठो, तो नॉर्मली आपको स्कोलियोसिस के बारे में बहुत सोचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बट ऑफ कोर्स एनुअली एक्सरेज करके अगर वो बढ़ रहा है तो उसको अपने को पिकअप करने, यानी आपकी अगर मैं बात वर्ड बाय वर्ड मानूं और अगर सचमुच वो 40% बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, तो आपको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि फिर आगे चल के वो डिफिकल्ट हो जाता है एंड वो बॉडी का बैलेंस चले जाता है। बट ये एक्चुअली कॉमन नहीं है कि 33 एज की एज में वो इतना ज्यादा प्रोग्रेस होवे। सो वो थोड़ा सा आप क्लैरिटी ले आना। एक एक इशू हो जाता है कि एक एक्सरे सुला के किया होता है और एक से बिठा के करते हैं और उसमें एकदम से फर्क दिख जाता है। तो यू कंपेयर द सिटिंग एक्सरे टू सिटिंग एक्सरे, और एक साल में उसमें प्रोग्रेशन इतना ज्यादा दिखा तो सर्जरी के बारे में एक्टिवली सोचना चाहिए, अनुकूल टाइम देके। और अगर सिर्फ पेन का मसला है तो 100% आप एक्सरसाइज से ठीक हो जाएंगे। Kushi, would you like to come and show to Dr. Nene once in Lilavati? Or even if she You can- sends the x-rays, that should be good No, enough. no, she was operated in Lilavati itself Right. after a fracture. So, Right. if you want, we can organize one Yeah, anytime. consult. Yeah, Khushi, I think maybe you should. If this has progressed fast, एक बार डॉक्टर नेने से बात करके कंसल्ट करके दिखा दो. I think that will be good. यस सर, मैंने अभी आपको मेरा रिसेंटली एक्सरे भी शेयर किया था जस्ट लास्ट वीक जो मैंने करवाया था। बिकॉज सर Okay. मुझे उन्होंने विनोद सर को ही मैंने बोला था कि सर मेरा पेन बहुत इंक्रीज होते जा रहा है, तो उन्होंने मुझे लिख कर दिया था और देन आई शेयर विद दिस एक्सरे विद यू। Okay. Sure. एंड वन मोर थिंग डॉक्टर एंड सर, Yeah. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ऑलरेडी स्कॉलियोसिस है, Hmm. बट इनका ऑपरेशन किया, स्कॉलियोसिस का किया, तो आपकी बॉडी की पूरी मोबिलिटी चली जाती है। सो दैट इज इट ट्रू? ना, दैट इज नॉट ट्रू। मोबिलिटी काफी हद तक कम होती है, बट आप झुक के टोज को मोस्टली जो स्कोलियोसिस सर्जरी हम लोग करते हैं 90% ऑफ द टाइम्स हम लोग इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं कि आप नीचे बेंड करके टोज टच कर सकते हो। और अपने हमारी एक स्कोलियोसिस गर्ल ने मुंबई मैराथन दौड़ा आफ्टर सर्जरी 21 किलोमीटर्स। एक हमारी स्कोलियोसिस की गर्ल वो पेल्विक डांस करती है, जो बेली डांस कहते हैं, वो शी इज लाइक अ मोटिवेटर। और एक लड़का है जो गुजरात के अंडर 16 क्लब टीम के लिए बॉलिंग करता है स्कोलियोसिस के बाद। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल। एंड दैट्स अ मिथ कि स्कोलियोसिस की वजह से आप स्टिफ हो जाते हो। कुछ हद तक मूवमेंट कम हो जाती है, बट वो ऑलरेडी स्कोलियोसिस के किड्स में लवचिकता कम होती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर हो जो माथा नी को टच कर दो तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ मेरा कम हो गया है। बट जो रेगुलर अपनी डे टू डे मूवमेंट्स है, जमीन पे बैठना, नीचे झुकना, वो सब रिटेन होती है मोस्ट सर्जरीज में। ओके, बिकॉज मैं अभी जब बिकॉज मुझे खुद से ही फील हो रहा है कि मेरा ये जो राइट साइड का पार्ट है धीरे धीरे वो बाहर आ रहा है, आई फील दैट। और मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ लाइक फील हो रहा है कि मुझे गैप्स आ रहे हैं, एक गैप्स आ रहे हैं ऐसा फील हो रहा है। तो एंड वी कैन हैव यू स्पेशली अब चेक मेरे जो आप जहाँ, चेस्ट हाँ आप के रहते हो। पार्ट है ये सारे लास्ट 15 डेज की पेन इंक्रीज हो गया है, इवन द फ्रंट ऑफ चेस्ट। पेन अलग रखो और डिफॉर्मिटी अलग रखो। अगर आपको अगर डिफॉर्मिटी बढ़ रही है ऐसे लग रहा है ना, और एक्सरे में भी डेफिनेट प्रोग्रेस है, तो वी हैव समथिंग इज फिशी और अपने को उसको एड्रेस करना चाहिए। I think Kushi, you should come and we should show Dr. Nene once. Yes, Chandana. Yeah, so when I've seen her spine X-ray, the scoliosis has really increased, Yeah. and we so don't understand why it has increased so fast. Yeah. The only thing that I'm saying is that sometimes the first X-ray is done lying down, supine, and the next X-ray is done sitting up, and obviously there'll be a huge change.
But if both are sitting X-rays and there's a significant change in two, then we should address this sooner rather than later. Sometimes this thigh, fracture which happens with these children, sometimes because of that there are a lot of changes, because after the surgery, if they do not have the stretches properly in their legs, the shortening of leg does move their pelvic because of the I think the stretch. I mean, this is the same thing which has happened with my daughter. There were no stretching done after the fracture, only plaster was done, and then I think the pelvic has really turned. Yeah. I cannot put it, I mean, exactly what has gone wrong, but we do see this kind of changes in these children. Yeah, I don't know. I think you're absolutely right that because of the hip fracture, there's a change in the alignment of the pelvis. And only thing, again, I'm going to say the same thing, that physical therapy is the only way around it, because that's the only thing that can bail you out once the structural damage has happened. And we tend to be slack on physical therapy. And that's why I think we should be more aware and raise the awareness of muscle strengthening. So for these kids, this physiotherapy looks like, something which is very taxing. So if you tell them workout, I think they will be ready to do. Yeah, exactly. Make it like games, rather than physio. Like Yeah. see, So Snehal, for swimming, so example, don't take it as an exercise, just do your workouts as you do your other things, gaming. You can go for your swimming. I think that works the same way as physiotherapy. yeah, so this, Snehal and her department, they do kids, na? So they have all this in place, like physio that's very attractive to children, that makes it looks like a game. And I totally buy your argument that should be sold, hectically to kids. Yeah, but that happens only for the kids, no? That as they grow adult, there are no games which are catered to them. So then they find it really boring. I mean, they've been doing physiotherapy all their life, I guess. But I must invite you to come and see Atharva Ability in BKC. I have seen, and it's really interesting. I did see. Snehal They had, have a lot of these interactive video, robotic kind of interfaces, which Yeah. can make it, interesting. Also, it's a community. So next to you is a person who's also differently abled. So you're able to, match up, and it becomes like a It outing. is definitely very interesting. I did see that, and we are taking all these kids there. I mean, all these individuals with spina bifida. There are no more kids, but we are going very soon to that place. And I hope if you are there, we can all join and have a word Yes, yes. in person. Most Sir, certainly. I have only लोग कैलिपर्स पहन के वॉक करते हैं, बट जैसे जैसे लाइक एज होती जाती है, एक तो हम लोग का यूरिन के कंट्रोल्स नहीं होते, तो उसकी वजह से थाइस पे वगैरह में बैड स्टोर इंक्रीज होते, तो उस हिसाब से हम स्टैंडिंग होना, जो क्रचिज से भी वॉकिंग करते वो हम छोड़ देते हैं, और उसके बाद देन फील के आफ्टर 5 to 7 years बैक और वीक हो जाता है, तो इट्स रियली गुड और नो, आई डोंट नो कि हम लोग को कैलिपर्स पहन के स्टैंडिंग एंड वॉकिंग इज नेसेसरी. इट्स वेरी नेसेसरी खुशी, बिकॉज बॉडी का फंक्शन जितना आप छोड़ दो उतना वो पीछे पड़ जाता है. यानी इसको, ये जो ट्रेनिंग हो बॉडी की, आप इवन 4 days वो ट्रेनिंग छोड़ दो ना, तो आप थोड़ा few percentage पीछे चले जाते हो. सो वॉकिंग एंड यूज ऑफ अपर बॉडी सपोर्ट के लिए ये बहुत क्रिटिकल है, और वो करते जाना पड़ता है. और ये थोड़ा सा टैक्सिंग, जैसे आपको बताया गया, वो टैक्सिंग होता है, लेकिन वो नहीं करो ना तो जल्दी से पीछे पड़ जाते हो. और रही बात बेड सोर्स की, तो वो होने ही नहीं चाहिए. यानी उसके ऊपर अपने को पूरी अपनी जिम्मेदारी है. और अगर क्या कि मैं कैथेटर पे हूँ, तो CSIC यानी सेल्फ कैथेटराइजेशन, ये बड़ा सेफ इजी मेथड है, जिससे इन्फेक्शन नहीं होगा, आप क्लीन रहेंगे, और बेड सोर्स और वो मसला नहीं आएगा. और उसके लिए भी थोड़ा सा आदत डालना पड़ता है. यानी हम पूरी तरह से समझ सकते हैं इसकी दुविधा, बट अल्टीमेटली ये आदत हो गई तो ये दुविधा नहीं होगी. सो दिस इज ओनली थिंग आई कैन टेल यू खुशी. बिकॉज आई फील, मैं पहले नेशनल पावर लिफ्टर थी ना, तो मैं बहुत सारे पुलअप्स वगैरह करती थी, और मेरे जो ट्रेनर थे एटलीस्ट मुझे जिम में जाके 5 to 6 minutes के लिए हैंग करने के लिए बोलते थे, और स्टैंडिंग पोजीशन बोलते थे. बट लास्ट 2 years से मैंने जिम छोड़ा है, और अभी रिसेंटली मेरी फिजियोथेरेपी भी ने बोला कि आपने खड़े रहना छोड़ दिया है, तो इसकी वजह से आपका जो बैक है धीरे धीरे वीक होते गया है, तो आपको अभी कैलिपर्स बना के खड़े रहना ही आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है. वो करेक्ट है, और एक्वा थेरेपी इसमें बहुत हेल्प करेगी.
एक्वाथेरेपी में आपकी मूवमेंट्स बहुत सुधार सकते हैं बिकॉज ग्रेविटी एलिमिनेट होती है। और वही जो जगह हम बताए ना, वहाँ पे भी एक्वाथेरेपी है, बट देयर आर मेनी अदर सेंटर्स फॉर एक्सरसाइजेज इन वाटर। Yeah. Thank you so Last much, sir. one. Thanks a lot. Yeah, last one question from iPhone because we have already crossed the time, and so iPhone, I don't know who is that person, and maybe we can discuss few questions. You can just send me. I can ask Nene sir, and I will get back to you on that. Yes, sir. Yes. Go on. iPhone, who is that person? iPhone किसका है? At very long time. Just check the comments. मुझे स्ट्रेट स्टैंडिंग नहीं होता है, फोल्डिंग द लेग। उसका बाय बर्थ स्पाइना बाइफिडा हुआ, मेरे यूरिन बैग का ऑपरेशन हुआ है और मुझे फीडिंग ट्यूब लगा के सर्व करना पड़ रहा है। बाय बर्थ मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मुझे इंडिपेंडेंट वॉकिंग नहीं होता। सवाल क्या है वैष्णव? कैन यू आस्क द क्वेश्चन? So I think these are questions related to incontinence and urinary issues. So maybe we can address them. वैष्णव अलग से आपसे बात करते हैं उसके बारे में। iPhone जो और है, आईफोन किसने हाथ ऊपर किया है, शायद आईफोन का इधर नाम आ रहा है आईफोन। Hi, sir. I'm Sailesh. I'm so sorry. Yeah, I joined. Shailesh, yeah, go ahead. Hi. Hello, everyone. So, doctor, I have a quick question. Like, all these years, I did not have any issue with my sitting posture. But over the last couple of months, what I understood is when I'm doing some work, for example, when I'm sitting and working with laptop, or when I do some basic household stuff, I feel my body is inclining towards right side than being in the straight posture. And I see my body becoming more and more comfortable in that posture, and then if I try to make it straight, I'm trying to feel a bit strained. So is this a sign to worry, or? Yes, it is a sign to it. That's the classic way that scoliosis happens. So as we go older, I'm assuming you're an adult now, right, Shailesh? Yeah, I'm 27 years old. Yeah. So as we grow older, a few things happen. One is that your body weight increases, partly because of just growth, partly because of being sedentary. And sometimes we take the foot off the gas in terms of exercises because we get busy with work and there's no time. So this combination, the support to your back starts becoming less and the back starts to tilt. And a point happens when the tilt becomes the normal. And this is no longer a muscular event. And we need to address this before that. So the exact thing that you mentioned, that now I feel comfortable when I'm in this position, is a bad sign, because this means that your scoliosis is getting structural. And in 10 years, you may need an operation, which you could have easily avoided agar it was treated in time. And once again, at the cost of sounding repetitive, physical therapy is the only real way out. So whether you think of aquatherapy, whether you think of home therapy, but strengthening your abdominals, strengthening your side muscles, that जो हम लोग अंदर रॉड डालते हैं ना, वही काम मसल्स करता है. So just imagine how easy it is to avoid an operation and just use your muscles. Okay, so there are ways where we can go without surgery, and by exercising, I can. This is the time. This is the time. Okay, that's perfect. Sure, doctor. Thank you so much, doctor, for all the input. Thank you, doctor. And about Sailesh, he is coming to Lilavati, I think, next month, right, Sailesh? Yes, doctor. 25th. Yeah, so maybe we can take Dr. Nene's advice about the scoliosis as well. Sure, doctor. That would be really helpful. That He is would work. basically from Bangalore, Right. but he is coming here for his incontinence surgery. Right. So maybe Abhay, we can Get an jointly X-ray and see have a him look. and we Yeah, can of decide course. what is priority. Of course. Yeah. Sure. Thank you. Mahi, you're there? Mahi, Yes, I'm there. do you want to comment or anything you want to say, discuss? Actually, I'm out. I'm on the road right now, so I don't know. Okay. Yeah, I think Yeah, so. one more question. Just I wanted to ask that male breasts, or what they call as a gynecomastia, is that does it have to do anything with the scoliosis,
All No. Nothing to do no. with school. Okay. But now one side of my breast is like little bigger. I have gynecomastia. One side is bigger compared to the other side. So that is the thing. I need to get that surgery I done. mean, before that, you start working on the other pectoral muscle, no? If you start doing good Okay. pectoral workouts, sometimes it just equalizes and you don't need a surgery for gynecomastia. Okay. Okay. But it Okay, has thank you. no connection with scoliosis, No right? connection at all, sir. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay. So I think so majority questions or doubts are clear, I hope. And if something is left, you can message in that group which we have already formed. And we will take down those questions, and I will ask, maybe I will disturb you, sir, for Yeah. questions if there are, because we have shortage of time and we have to close this program. So I will request all to switch off their cameras, and we can take a small Switch on switch on this cameras, and we will take one picture, a screenshot. a screenshot. Yes. Yes. Actually, my camera is having some issues. It's not switching on. Okay. 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 No problem. Those who can. Those who can, please switch on your video. So we get the full. Okay, I think. Okay. Okay. Smile. Okay. Okay. I have taken all. So thank you all for joining, and thank you, Dr. Nene sir, for conducting this wonderful session. Thank you all, and end this session. Control. Control. What is? Thank Oh. you all. Okay, yeah, thank you. Good Thank you, night. Abhay. Thanks a lot. Bye. Flank is good. Bye.